Good morning, class 6. How are you all? Hope you all are fit and fine. So, students, last day we have started chapter 10 Science, Motion and Measurement of Distances. Okay, and in this chapter we have already learned about story of transport, how wide the desk, some measurements, standard units of measurements, correct measurement of length. Okay, and today we are going to learn about measuring the length of a curved line. That means अगर कोई कर्व लाइन हो तो उसको हम मेजर किस तरह से करेंगे. एंड देन मूविंग थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो मूविंग थिंग्स है उसके बारे में जानेंगे एंड टाइप्स ऑफ मोशन. ओके, लेट्स स्टार्ट. Sorry, we cannot measure the length of a curved line directly by using a meter scale. एक स्ट्रेट लाइन हो तो उसको हम लोग मीटर स्केल से डायरेक्टली मेजर करके बता सकते हैं कि कितना लंबा है ये लाइन. लेकिन अगर कर्व्ड लाइन हो तो मीटर स्केल से हम लोग मेजर नहीं कर सकते. We can use a thread to measure the length of a curved line. तो इस तरह की कर्व्ड लाइन अगर हो तो हम लोग एक थ्रेड की मदद से इसको मेजर कर सकते हैं. Activity 4. Use a thread to measure the length of a curved line AB. Figure 10.10. तो यहाँ पे ये दो पॉइंट को मान लो हमें मेजर करना है तो इसको हमें पहले नाम दे देना है A B. ओके, A और B का जो डिस्टेंस है वो हमें मेजर करना है. तो क्या करेंगे हम लोग, एक थ्रेड लेंगे. Put a knot on the thread near one of its ends. Place this knot on the point A. Now place a small portion of the thread along the line, keeping it taut using your fingers and thumb. Hold the thread at this point with one hand. Using the other hand, stretch a little more portion of the thread along the curved line. Go on repeating this process till the other end B of the curved line is reached. Make a mark on the thread where it touches the end B. Now stretch the thread along a meter scale. Measure the length between the knot in the beginning and the final mark on the thread. This gives the length of the curved line AB. तो अब करना क्या है मैं बता दूं आपको कि एक थ्रेड ले लें. थ्रेड को इस पॉइंट से थ्रेड को मार्क कर लेना है. मार्क करके इस पॉइंट से इसको टच करते हुए ये लाइन के ऊपर से उसको बिठाते जाने हैं. जहां पे जैसे कर्व है उस तरह से हमें थ्रेड को बिठाते जाने हैं. ओके, बिठाते बिठाते ये पॉइंट जब आ जाएगा तो ये पॉइंट पकड़ लेने हैं, ये पॉइंट पकड़ लेने हैं. उस थ्रेड को बिल्कुल स्ट्रेच कर देने हैं और फिर एक मीटर स्केल पे उसका मेजर करना है. ओके, we see that we need a lot of care to ensure that we are measuring distances and lengths correctly. And we need some standard units and devices with which we measure this distance and can convey our results to others. तो इसमें हम क्या देखें कि कोई भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए या लेंथ को करेक्टली मेजर करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना होता है. And we need some standard units and devices with which we measure these distances and can convey our results to others. तो इसके अलावा हमें क्या चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए या कुछ स्टैंडर्ड डिवाइस हमें चाहिए होता है ये सारी चीजें मेजर करने के लिए और लोगों तक ये मैसेज कन्वे करने के लिए कि इसका एग्जैक्ट मेजर क्या है. समझ में आया? सो कर्व लाइन किस तरह से मेजर किया जाता है ये आप लोग समझ चुके होंगे. नेक्स्ट, मूविंग थिंग्स अराउंड अस. Think of some object you have seen recently. List them in table 10.4. This may include a school bag, a mosquito, a table, people sitting on chairs, or people moving about. The list may also have a butterfly, a dog, a cow, your hands, a small baby, a fish in water, a house, a factory, a piece of stone, a horse, a ball, a bat, a moving train, a swing machine, a wall clock or the hands of a clock. तो आप रिसेंटली अपने आसपास में जो चीजें देखे हैं उसको
टेबल 10.4 जो दिया गया है इस टेबल में फिल करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, जो भी चीज आपने चारों तरफ देख रहे हो आप वो सारे फिल करना है। Which of these are moving? तो ये जो आपने लिस्ट किए हैं, शॉर्ट लिस्ट किए हैं, इसमें से कौन कौन सा मूव कर रहा है? Which are at rest और कौन सा रेस्ट पोजीशन में है? How did you decide whether an object is in motion or at rest? आप किस तरह से डिसाइड करोगे कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है? You might have noticed that the bird is not at the same place after some time, while the table is at the same place. On this basis, you may have decided whether an object is at rest or in motion. तो एक बर्ड को अभी आप जहाँ पे देख रहे हो सकता है थोड़ी देर बाद वो वहाँ पे ना रहे, लेकिन एक टेबल को या इस व्हाइट बोर्ड को ये जहाँ पे है आप कल आके देखोगे तो भी है यहीं पे रहेगा, अगर दूसरे कोई इसको ना हटाए तो इसको देख के आप बता सकते हो कि ये व्हाइट बोर्ड जो है ये रेस्ट पोजीशन में है। लेकिन जो बर्ड आप देख रहे हो कि एक जगह से दूसरी जगह वो टाइम के साथ साथ जगह चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है, आप कह सकते हैं। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ एन एंट क्लोजली। तो एक एंट का मोशन जो है वो क्लोजली आपको देखने के लिए बोला जा रहा है, जिसके लिए एक्टिविटी 6 आपको करने हैं। सिलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड एंट्स। तो एक जगह ऐसे ढूंढना है जहां पे आप एंट देख सकते हो, चिट्ठी जहां पे देख सकते हो। Spread a large sheet of white paper on the ground and keep a little sugar on it. तो एक white चार्ट पेपर आपको नीचे बिछा देने हैं और ऊपर से कुछ सुगर आपको स्प्रेड कर देना है। ओके, ants are likely to be attracted to the sugar and you will find many ants curling on the sheet of paper soon. तो सुगर हम लोग क्यों देते हैं? क्योंकि सुगर जो है वो एंट को अट्रैक्ट करता है और थोड़ी देर में आप देखोगे बहुत सारे एंट उस पेपर के ऊपर आ जाएगा। For any one ant, try and make a small mark with a pencil near its position when it has just crawled on to the sheet of paper. Keep marking its position after a few seconds as it moves along on the sheet of paper. सॉरी, तो उसके बाद क्या करना है? एक एंट को आपको ध्यान से देखना है, वो जहां जहां जा रहा है वहां से मार्क करते जाना है। ठीक है, मान लो एंट पहले यहाँ पे था तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो आप क्या करोगे? यहाँ से यहाँ गया मार्क कर दोगे पेंसिल से, फिर इधर मार्क करोगे। इस तरह से वो जितना जगह चेंज करते रहेगा आपको मार्क करते जाना है। After some time, shake the paper free of the sugar and the ants. Connect the different points you have marked with arrows to show the direction in which the ant was moving. Each point you have marked shows where the ant moved to in intervals of few seconds. तो यहाँ पे क्या करना है? पहले तो आपको बोला गया है कि एंट जहाँ जहाँ जा रहा है, पहले मान लो यहाँ पे आया, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह से अगर मूव कर रहा है तो फिर थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है? पेपर से सारे एंट और सुगर्स को फेंक देना है नीचे, फिर इसको मार्क करना है एरो के साथ। ठीक है, कि वो कहां से कहां मूव किया। मान लो यहाँ से इधर गया, फिर इधर आया वापस, तो इस तरह अगर वो मूव किया है तो इस तरह एरो मार्क के साथ आपको दिखाना है। ओके, तो ये पॉइंट जो है देखो कुछ सेकंड के बाद एंट ने अपनी जगह जो चेंज किया है वो यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है, राइट? मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, इज नॉट इट? तो मोशन जो है वो क्या है कि टाइम के साथ साथ वो अपनी जगह जो है वो चेंज करता है और इसी को हम लोग मोशन कहते हैं। इन एक्टिविटी 5, where did you place object like a clock, a sewing machine or an electric fan in your grouping of objects? Are these objects moving from one place to other? No. तो एक्टिविटी 5 में जो आप चीजें लिखे थे उसमें हो सकता है कि आपने एक क्लॉक लिखे हो, वॉल क्लॉक, हो सकता है एक फैन लिखे हो, इलेक्ट्रिक फैन। तो ये सारी चीज क्या एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है? नहीं ना। Do you notice movement in any of their parts? कि इसके बॉडी का दूसरा कोई पार्ट्स ऐसा हो जो मूव कर रहा हो?
the blades of the fan or the hands of a clock, how are they moving? तो एक फैन का जो ब्लेड होता है वो देखोगे कि मूव करता है, एक क्लॉक का जो हैंड होता है वो देखोगे कि मूव करता है. Is their movement similar to that of an ant or a train? क्या ये मूवमेंट जो है ये ट्रेन जिस तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है या ये जो एंट मूव किया एक जगह से दूसरी जगह, क्या इसके जैसा ही है ये मूवमेंट? नहीं ना, जगह तो चेंज नहीं कर रहा है. Let us now look at some types of motion to help us understand these differences. तो चलो आप कुछ अलग अलग तरह के मोशन के बारे में पढ़ते हैं ताकि ये अच्छे से हम लोग समझ सकें. तो हमारे आसपास में जो चीजें हैं वो मूव करते हैं, ये समझ में आ गए. अब टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने तरह के होता है, किस तरह के होता है मोशन, वो हम लोग देखेंगे. You may have observed the motion of a vehicle on a straight road, march past of soldiers in a parade, or the falling of a stone. Figure 10.12. तो फिगर 10.12 जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्ट्रेट रोड पे अगर कोई व्हीकल मूव कर रहा हो या मार्च पास्ट करते हुए कोई जा रहा हो या एक स्टोन जो है वो अगर नीचे गिर रहा हो, तो ये किस तरह की मोशन है. Sprinters in a 100-meter race also move along a straight track. Can you think of more such examples for your surrounding? तो 100 मीटर रेस अगर होता है तो भी एक स्ट्रेट ट्रैक होता है दौड़ने के लिए और उसी ट्रैक से मूव कर दौड़ते हैं सब कोई. तो इस तरह के और कोई एग्जांपल आपके पास है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे जाए, सीधा मूव करे. In all these examples we see that the object move along a straight line. This type of motion is called rectilinear motion. ओके, तो इस तरह की जो मोशन है जहां पे ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, इस तरह की मोशन को हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. याद रहेगा, रेक्टिलिनियर मोशन. तो वो मोशन जहां पे ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करता हो, इस तरह की मोशन को हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. Next, activity 7. Take a stone, tie a thread to it and wheel it with your hand. Observe the motion of the stone. We see that the stone moves along a circular path. तो एक रस्सी लेने हैं, उसके एक साइड में क्या करना है, एक स्टोन को बांध लेना है अच्छे से और उस रस्सी का दूसरे एंड को पकड़ के ऐसे घुमाने हैं. तो इस तरह घुमाओगे तो क्या देखोगे आप, वो जो स्टोन है वो मूव कर रहा है एक सर्कुलर पथ में. ओके, इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम. तो इस तरह की मोशन में आपका हाथ से स्टोन का दूरी जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, क्योंकि धागा जो है वो इस तरह चारों तरफ घुमा रहा है तो स्टोन चारों तरफ गोल गोल घूमता है. तो ये आपका हाथ जहां पे है, जहां से पकड़े हुए हो, उससे डिस्टेंस जो है वो एक ही रहता है चारों तरफ. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. तो इस तरह की जो मोशन है उसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं. ओके, द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन. तो फैन का जो ब्लेड है, ब्लेड में अगर एक जगह कहीं मार्क कर दो और वो मार्क जो घूमता है उसको भी आप सर्कुलर मोशन कह सकते हो. या क्लॉक का जो हैंड है, उस हैंड को अगर कहीं पे आप मार्क कर दो तो उसका जो हैंड घूमता है क्लॉक का, वो भी सर्कुलर मोशन है. The electric fan or the clock by themselves are not moving from one place to another, but the blades of the fan rotate and so do the hands of a clock. तो एक फैन को और एक क्लॉक को आप देखते हो तो वो खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहा है, यानी कि वो खुद मोशन में नहीं है. लेकिन उस फैन का ब्लेड को आप देखोगे या उस क्लॉक का हैंड्स को आप देखोगे तो वो मूव कर रहा है, वो मोशन में है. If we mark a point anywhere on the blades of a fan or on the hands of a clock, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate. तो जब एक पंखा घूम रहा है
एक फैन का ब्लेड मान लेते हैं, इस साइड में एक ब्लेड है, इस साइड में एक ब्लेड है, इस साइड में एक ब्लेड, इस साइड में एक ब्लेड। ओके, अब यहाँ पे अगर आप मार्क कर दिया इस पोजीशन पे, तो ये जो डिस्टेंस है, जितना भी घूमे, ये डिस्टेंस जो है ये सेम रहेगा। उसी तरह क्लॉक का जो हैंड होता है, उसमें भी आप अगर कहीं पे मार्क कर दो, तो उसका सेंटर जो है, सेंटर से वो मार्क का डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। ओके, in some cases an object repeats its motion after some time। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि ये जो मोशन है ये रिपीट होता है कुछ ऑब्जेक्ट में। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो इस तरह की मोशन जो है उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं, यानी कि एक तरह की मोशन जो थोड़ी देर बाद रिपीट होता है, थोड़ी देर बाद रिपीट होता है, उसको हम लोग कहेंगे पीरियोडिक मोशन। टेक द स्टोन टाइड विद द string that you used in activity 7। now hold the string in your hand and let the stone hang from it। this is a pendulum। pull the stone to one side with the other hand and let it go। now the pendulum is in motion। तो जो हम लोग धागा पे स्टोन बांध के घुमाए थे, उसी का यूज करके उस धागा को इस तरह से पकड़ के रखना है आपको, और स्टोन नीचे लटका हुआ रहेगा। तो ये हो गया पेंडुलम। ओके, अब दूसरे हाथ से इस पत्थर को एक साइड में लेके छोड़ दो, तो वो देखोगे मूव करेगा। अब ये पेंडुलम जो है वो मोशन में आ गया। ओके, इट इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो ये जो मोशन है, स्टोन जो मूव कर रहा है, एक बार इस साइड में एक बार उस साइड में, ये है पीरियोडिक मोशन। अ ब्रांच ऑफ अ ट्री मूविंग to and fro, motion of a child on a swing, strings of a guitar or a membrane of drums being played are all examples of periodic motion। तो जो झूला झूलते हैं उसमें जो गिटार बजाते हैं, गिटार का जो स्ट्रिंग होता है वो भी जो मोशन में रहता है, या ड्रम बजाते हैं जो मोशन में रहता है, ये सारे पीरियोडिक मोशन होता है। ओके, where an object or a part of it repeats its motion after a fixed interval of time। तो इसमें पीरियोडिक मोशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट जो है वो रिपीट कर रहा है उसका मोशन को कुछ देर बाद एक सर्टेन टाइम पे। ओके, सॉरी, एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल पे ये मूव कर रहा है, मोशन में आ रहा है, तो इसलिए इसको आप लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन। Did you observe a sewing machine as a part of activity 5? Activity 5 में जो हम लोग लिस्ट किए थे, शॉर्ट लिस्ट किए थे, उसमें sewing machine भी था। You must have observed that it remains at the same location while any point on its wheel moves with a circular motion। It also has a needle that moves up and down continuously as long as the wheel rotates। Is not it? तो वो जो sewing machine है उसमें देखोगे एक wheel होता है, वो अपनी जगह पे रह के रोटेशन होता है उसमें, और एक नीडल देखोगे एक बार अप डाउन करते रहता है जब तक वो घूमता है व्हील सॉरी जब तक व्हील घूमता है तब तक उसका नीडल जो है वो अप डाउन करते रहता है। दिस नीडल इज अंडरगोइंग अ पीरियोडिक मोशन। तो नीडल जो है ये एक पीरियोडिक मोशन है। हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ अ बॉल अलोंग द ग्राउंड। बॉल का मोशन जो है ग्राउंड के साथ, क्या इसको आप ध्यान से देखे हो? Here the ball is rolling on the ground, rotating as well as moving forward along the ground. Thus the ball undergoes a rectilinear motion as well as rotational motion। तो एक बॉल जब गोल गोल घूमते हुए ग्राउंड में आगे बढ़ता है, तो गोल गोल जो घूम रहा है वो कौन सा मोशन है? रोटेशनल, राइट? जब गोल गोल घूम रहा है तो वो रोटेशनल मोशन है, और वो गोल गोल घूमते घूमते आगे भी बढ़ रहा है, सीधा आगे की तरफ भी बढ़ता है। तो वो आगे जब बढ़ रहा है सीधा, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन है। ओके, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल वेयर ऑब्जेक्ट अंडरगो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन? क्या आपके दिमाग में और कुछ ऐसा आ रहा है जिसमें एक साथ दो मोशन काम कर रहा है? जब आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल का जो व्हील है वो किस तरह की मोशन में रहता है? रोटेशनल मोशन में।
और साथ ही साथ साइकिल आगे की तरफ भी बढ़ता है, तो वो कौन सा मोशन है? रेक्टिलिनियर मोशन। तो यहाँ पे भी दोनों मोशन साथ साथ काम कर रहे हैं। We did many measurement activities and discussed some kinds of motion. We saw that motion is a change in the position of an object with time. तो इसमें बहुत सारे मेजरमेंट के एक्टिविटीज हम लोगों ने किए हैं, कुछ टाइप ऑफ मोशन के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। और मोशन क्या है हम लोग देखें, मोशन जो है वो एक ऑब्जेक्ट जब टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन को चेंज करता है तो उसको हम लोग मोशन कहते हैं। The change in its position can be determined through distance measurement. तो ये जो पोजीशन का चेंज हो रहा है मोशन के थ्रू, तो ये हम लोग डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं? डिस्टेंस को मेजरमेंट करके। This allow us to know how fast or slow a motion is. तो इससे हमें पता चलता है कि ये कितना स्लो मोशन में है या कितना फास्ट मोशन में है। The movement of a snail on the ground, a butterfly flitting from a flower to flower, a river flowing, an aeroplane flying, moon going around the earth, and blood flowing inside our bodies show that there is motion everywhere around us. तो हमारे चारों तरफ जो हम लोग देखते हैं, एक स्नेल जो होता है वो मूव करता है, फिर एक बटरफ्लाई जो होता है वो फ्लावर टू फ्लावर मूव करता है, रिवर जो है वो फ्लो होता है, एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करता है, मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो फ्लो होता है वेन के अंदर से, राइट, नर्व्स के अंदर से। तो हमारे चारों तरफ हर जगह पे जो भी हम लोग देखते हैं कि मोशन में है हर चीज, है ना। तो समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ मोशन। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गया होगा इस चैप्टर का। सॉरी, इफ यू हैव एनी डाउट इन द होल चैप्टर यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉलिंग, ओके। एंड नाउ write down the hard words of this chapter and complete the keywords also, and next day I will give you the question answer of this chapter, okay. So for now, bye, have a good day.